Okay, so good evening everyone. Uh, till now, we have studied the types of instructions. In types of instructions, we have mainly studied the first type was data transfer instructions. The second type we have studied was arithmetic instructions, and the third type was program control instructions. In data transfer instructions, we have to move data from memory to register, or register to memory, or within register to register. And we had different types of instructions for that, like load, store, exchange, and others. In arithmetic, we had three type of instructions. The first one was, so this is not arithmetic but data manipulation. Data manipulation. So in data manipulation, we had three types of instruction. The first one was arithmetic. The second one was logical operations. And the third one was shift operations. So we have studied all the data transfer instructions. We have studied arithmetic and logical. Now we will study for shift operations, and after shift operations we will also study program control instructions today. Okay, so let's start with shift operations. So in shift operation, there are various instructions like logical shift right, logical shift left, arithmetic shift right, and arithmetic shift left. So we will study them one by one, and there are four more instructions under the shift operation. We will also see them. Okay, so let's take an example. Let's say I have 8 bits in a register. So let's say this is my register having 8 bits. Okay, so let's say it is 1 0 1 1 0 0, and let's say 1 0. Okay, so these are 8 bits. Now if we talk about logical shift right, first of all we are doing right shifting. So this is my right hand, so we are going to shift from this side to this side. So we are going to shift these values to this side, this side. And what about this value? This value will fall off. देखो चार तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं अभी हमारे पास. लॉजिकल शिफ्ट राइट, राइट मतलब जो राइट हैंड है उस साइड हमें सारी वैल्यूज को, सारी शिफ्ट बिट्स को एक एक करके शिफ्ट करना है. और जो लास्ट वाली बिट बचेगी ये फॉल ऑफ हो जाएगी, मतलब उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे. सो हमारा आंसर क्या होगा उसको देखो. लेट्स से दिस इज अगेन माई रजिस्टर. So after shifting, what will happen? This bit will come here 1, this will bit come here 0, here 1, here 1, here 0, here 0, and this will come here 1, and this value will discarded. ये हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी. और जो ये वैल्यू बची है उसको हम फिल करेंगे 0 से, हमेशा 0 से फिल करेंगे. So this is what we have done is logical shift right. हमने राइट साइड एक शिफ्ट किया है. So how much shifting we have done? We have done shifting by one count. Okay, अगर हमें 2 काउंट शिफ्ट करना है तो जो हमारा ये आंसर आया है उसको हम फिर से शिफ्ट करते हैं. जैसे अगर 2 शिफ्ट करने के लिए बोला गया होता तो हम क्या करते,
इस ज़ीरो को यहाँ लेके आते, इस 1 को यहाँ पे, इस ज़ीरो को यहाँ पे, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 0, ये वाला 0 इधर, और ये क्या हो जाता हमारा डिस्कार्ड। और ये वाली वैल्यू फिर से 0 से हम असाइन कर देते जो हमारे पास, क्योंकि इधर हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है जिसको हम यहाँ पे डालना चाहते हैं, तो इसको हम 0 से फिल करेंगे। तो ये हमारे अब 2 बार शिफ्टिंग हो गई है राइट साइड, बट 2 टाइम्स। ओके, सो देर आर 2 थिंग्स, वन इज विच टाइप ऑफ शिफ्ट एंड व्हाट हाउ मेनी टाइम्स। तो एक बार करने पे एक बिट हर एक अपनी पोजीशन के राइट में शिफ्ट हो जाएगी, और 2 बार करेंगे तो 2 बार शिफ्ट हो जाएगी। तो ये हमारा है लॉजिकल शिफ्ट राइट। ऐसे ही लेट से हमें शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड, तो हमने लेट से ये एक एरे रजिस्टर लिया जिसके अंदर 8 बिट्स हैं, अगेन 8 बिट्स हैं, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है जो लेफ्ट हैंड है उधर की साइड हमें शिफ्ट करना है। सो दिस 0 विल बी शिफ्टेड टू दिस साइड, this 1 will be shifted to this 0 will shifted to this 0 will be shifted to this 1 will come here, this 1 will come here, and this 0 will come here. Or what about this one? So leftmost value, leftmost bit will be discarded in this case. This will be discarded, and since we don't have value here, so it will be filled by 0. देखो जब हम राइट शिफ्ट कर रहे थे तो हमने इधर वाली वैल्यू को 0 से अपेंड किया था, जब हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो इधर वाली वैल्यू को हम 0 से अपेंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास इधर कोई वैल्यू नहीं है और रखने के लिए। और ये हम शिफ्ट किधर कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इस वाली वैल्यू को इधर, इस वैल्यू को इधर, ऐसे हम शिफ्ट करते जा रहे हैं, और ये वाली वैल्यू हमारी बाहर निकल गई। दैट मीन्स इट विल फॉल ऑफ, गिर जाएगी, मिलेगी नहीं अब, ठीक है। और क्योंकि इस वाले पॉइंट के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। और कितनी बार किया है, एक बार किया है अभी। अगर हम 2 बार करेंगे तो फिर से ऐसे ही हमें लेफ्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमने एक बार लेफ्ट शिफ्ट किया, एक बार राइट शिफ्ट किया, तो क्या हमारा आंसर जो पहले था वही हो जाएगा? जरूरी नहीं है। जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार देखो, अगर मैं इस वाली वैल्यू को, ये वाला जो हमारी वैल्यू है, इसको एक बार राइट शिफ्ट कर दूं, क्योंकि लेफ्ट तो मैं कर चुका हूं, अब मैं अगर इसको राइट शिफ्ट करूंगा तो ये वाली 0 तो डिस्कार्ड हो जाएगी। लेकिन जब ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो इस वैल्यू की जगह हम क्या रखेंगे, 0, जबकि ओरिजिनल वैल्यू में यहाँ पे क्या था, 1। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक बार लेफ्ट शिफ्ट किया और एक बार राइट शिफ्ट किया तो हमारे पास आंसर जो पुराना ओरिजिनल था वही आ जाए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। नाउ लेट्स सी दिस, बोथ आर डन। नाउ लेट्स सी अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। नाउ दिस इज डिफरेंट। हो सकता है आपने ये ना भी पढ़ा हो, तो इसको जरा ध्यान से सुनिए, बिकॉज दिस इज डिफरेंट। लेट्स से आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल। ये वाला मेरी ओरिजिनल वैल्यू थी, इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ। हमारे पास 8 बिट्स हैं अगेन, ठीक है। तो 1 0 1 1 0 0 1 0। अर्थमेटिक शिफ्ट राइट मतलब होता है कि हमें उसका जो साइन है वो चेंज नहीं करना है, यानी कि क्योंकि नंबर्स जो हैं वो 2's कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होंगे। इसका मतलब ये क्या है कि ये वैल्यू 2's कॉम्प्लीमेंट में स्टोर है। तो ये वाला जो हमारी वैल्यू है, जो MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो बिट हमारी साइन बताती है। अगर वो 1 है तो यानी कि नेगेटिव नंबर है, और अगर वो बिट 0 है तो यानी कि पॉजिटिव नंबर है। तो हमारा नंबर नेगेटिव ही रहेगा शिफ्ट करने के बाद भी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो होगा ये कि अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे अर्थमेटिक राइट, तो क्या होगा, देखो अर्थमेटिक राइट शिफ्ट कर रहे हैं, अर्थमेटिक में ये वाली वैल्यू यहाँ पे एज इट इज कॉपी होगी, ये चेंज नहीं हुई। देखो ये शिफ्ट नहीं हुई है, जो MSB है वो अपनी जगह है। ये वाली वैल्यू
एक पोजीशन शिफ्ट हो गई. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई विल कॉपी ऑल दीज वैल्यूज एंड पुट इट हियर. सो दिस वैल्यू विल नॉट हैव एनी प्लेस, सो इट विल गेट फॉल ऑफ. ये विल फॉल ऑफ हो जाएगी. देखो इस वाली वैल्यू को 1 रखेंगे, देन इस वाली वैल्यू को 1, इस वाली वैल्यू को 0, इसको 0, इसको 1, और ये वाली वैल्यू के लिए कोई जगह नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल ऑफ. ठीक है. तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, बिकॉज यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू तो रखी नहीं है, ये वाली वैल्यू तो हमारी एज इट इज कॉपी हो गई है. तो हम यहाँ पे वही वैल्यू रखेंगे जो यहाँ पे है, that is 1 will come here, not 0. Okay, so what value we have here at MSB will be copied here. So this is arithmetic shift right. So what we have done here is arithmetic shift right. क्योंकि ये डिफरेंट है तो एक और एग्जांपल करके देखते हैं. ठीक है. तो लेट से इस बार मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू है कुछ इस तरह से. ठीक है. इस बार मैं एक काम करता हूं, इधर 0 ले लेता हूं, जिससे कि आपको समझ में आए कि अगर ये 1 था तो क्या किया और 0 था क्या किया. कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, चाहे वो 1 हो या 0. बट लेट से 1 0 1 1 0 1 0, लेट से ये वैल्यूज थी. अब इनको हमें अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करना है एक बार. तो क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को एज इट इज यहां पे कॉपी करेंगे. वाई, बिकॉज वी डू नॉट हैव टू चेंज द साइन. ये वाली वैल्यू राइट शिफ्ट हुई, वैल्यू राइट शिफ्ट, वैल्यू राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, देन राइट शिफ्ट. दिस इज ऑल्सो शिफ्टेड वंस एंड दिस विल फॉल ऑफ बिकॉज वी डोंट हैव एनी स्पेस फॉर इट. और ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, जैसा हमने यहाँ पे किया था. ये वाली वैल्यू यहाँ पे कॉपी की थी, तो जो वैल्यू हमारे पास MSB पे है वही यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, बिकॉज वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी. तो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा. सो दिस इज अर्थमेटिक शिफ्ट राइट. समझ में आया ये सबको? यस सर. Yes, sir. Okay, so now we have seen arithmetic shift right, but see यहाँ पे अब एक कैच है कि arithmetic shift left ऐसा नहीं करता है. arithmetic shift left are exactly same as logical shift left. जैसे हमने logical shift किया था ऐसे ही arithmetic shift left होता है. तो कुछ कंप्यूटर्स में ये अलग अलग गिवन होते हैं, लेकिन जहाँ पे ये दोनों गिवन नहीं होंगे वहाँ पे अगर हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है या अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट करना है वो दोनों एक से ही हो जाएगा, बिकॉज दे बोथ आर सेम. इनकी दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है. इसके अंदर कॉपी वाला काम नहीं चलेगा, इसमें दोनों में सेम होगा. ठीक है. तो कॉन्सेप्चुअली दीज टू आर सेम. ओके. सो कुछ कंप्यूटर्स में ये एक ही इंस्ट्रक्शन गिवन होती है, 2 इंस्ट्रक्शंस होती ही नहीं है. ओके. So these are 4 instructions which are shift. Now there are 4 more instructions. What are those 4 instructions? So we have rotate right, another is rotate left, then we have rotate right with carry, and lastly we have rotate left with carry. अब इन चारों को समझिए. देखिए जब हम केवल शिफ्ट कर रहे थे तो हम एक वैल्यू को डिस्कार्ड कर रहे थे. अगर लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे तो हमारी जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू थी वो डिस्कार्ड हो रही थी. जब हम राइट शिफ्ट कर रहे थे तो राइट मोस्ट वैल्यू जो थी वो डिस्कार्ड हो रही थी, क्योंकि उसके राइट में जगह नहीं है रखने के लिए. लेकिन रोटेट में कोई भी वैल्यू डिस्कार्ड नहीं होती है, बिकॉज वी आर रोटेटिंग. ओके. सो व्हाट हैपन इज, लेट से आई हैव दिस रजिस्टर हैविंग 8 बिट्स. क्या है वो 8 बिट्स? लेट से 1 0 1 1 0 0 1 0, ये हमारे पास बिट्स हैं. अब हमें लेट से रोटेट राइट करना है. तो रोटेट राइट में क्या होगा,
रोटेट राइट हैंड साइड वाला जो वैल्यू है वो रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगी और ये सारी वैल्यू एक एक आगे शिफ्ट हो जाएंगी राइट साइड. सो दिस इज हाउ these value will be shifted. So what will be our answer? Now see this value come here 1, this value come here 0. So पहले तो हमने शिफ्टिंग कर दी सारी वैल्यूज की, ये एज इट इज, लेकिन यहाँ पे ये जो जीरो था पहले शिफ्टिंग में हम इस जीरो को डिस्कार्ड कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इस बार इस जीरो को हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है. तो ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई, तो ये हमारा रोटेट है. अगर यहाँ पे लेट से 1 होता तो यहाँ पे 1 आता, बिकॉज पहले हम 0 लिख रहे थे यहाँ पे वो वैल्यू को डिस्कार्ड करने के बाद. अब यहाँ पे ये 0 नहीं है, जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी वो हमारी रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगी. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज रोटेट राइट. और रोटेट लेफ्ट में इसका जस्ट उल्टा, यानी कि रोटेट लेफ्ट में जो हम वैल्यू डिस्कार्ड कर रहे थे वो हमारी डिस्कार्ड ना होके उससे दूसरे एंड पे पहुंच जाएगी. मतलब ये वाली वैल्यू हमें रोटेट करनी है. ये वाली वैल्यू को देखो लेफ्ट में हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इधर, देखो इस तरह से ये वाली वैल्यू लेफ्ट साइड, ये वैल्यू इधर, ये वैल्यू इधर, इधर, इधर और ऐसे जाती रहेगी. लेकिन इस वाली वैल्यू को हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इसको हम आखिरी में इधर पहुंचा देंगे. तो व्हाट वी आर डूइंग इज, ये वाला लेट से 1 था तो ये 1 इधर चला गया, 1, ये 1 इधर चला गया, ये 0 इधर आ गया, ये वाला 0 इधर, ये वाला 1 इधर, ये वाला 1 इधर, ये वाला 0 इधर. और इस 1 को डिस्कार्ड नहीं किया, इसको हमने कहाँ पहुँचा दिया, इसके दूसरे एंड पे, यानी कि इधर. दिस इज व्हाट वी कॉल एज रोटेट लेफ्ट. तो ये हमारा रोटेशन है, रोटेशन में डिस्कार्डिंग नहीं होगी. ओके, so this is done and rotate right and rotate left with carry. so with carry मतलब हमारे पास एक एक्स्ट्रा फ्लैग होगा जिसको हम कैरी फ्लैग बोलते हैं. वो कैरी फ्लैग की वैल्यू को हम यूज करेंगे रोटेशन में. so what we have is instead of 8 bits, let's say our array of bits which I am calling 8-bit register, let's say ये हमारे पास 8 बिट्स हैं, 1 0 1 1 0 0 1 0, लेट से ये 8 बिट्स हैं. इसके अलावा हमारे पास एक कैरी फ्लैग होगा, लेट से इस कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है. तो अब हमें 8 बिट्स के अंदर रोटेशन नहीं करना है. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्क्वीज दिस 8 बिट्स अलॉन्ग विद 1 कैरी बिट. तो आप इसको एक कॉम्बिनेशन ऑफ 9 बिट्स मान लीजिए. इंस्टेड ऑफ 8 बिट्स यू कैन कंसिडर एज combination of 9 bits. So we have to do, let's say, right rotation with carry. So what we do is we will put it here. Instead of here, we are putting this value here, and this value will be transferred to this. Then this transfer will be happening. This is called right shift with carry. So this answer will become, so this 0 will come in carry, this carry will come here, then this value will come here. So this value is coming here, this value is coming here, then again 0, this 1, this 1, this 0, this 0, this 1, and this 0 is actually coming in the carry part. So we have put this value inside the carry part. So instead of 9 bits, consider it as a, instead of 8 bits, consider it is a combination of 9 bits because we have one more carry bit. Okay, so this is rotate right with carry. Okay, now let's see rotate right with, rotate left with carry. सिमिलर सेम फैशन में बट डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी. इस बार राइट की जगह लेफ्ट हो जाएगी डायरेक्शन. तो अगर हमारे पास ये 8 बिट्स हैं, यहाँ पे ये है 1 0 1 1 0 0 1 0 और यहाँ पे हमारे पास कैरी की वैल्यू 1 है. तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं,
इसको लेफ्ट, इसको भी इधर, इसको इधर, इसको इधर, ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड। इस वाली वैल्यू को कैरी में डालेंगे और इस कैरी वाली वैल्यू को इधर डालेंगे, तो ये लेफ्ट रोटेशन हो जाएगा विद कैरी। सो व्हाट विल आवर फाइनल आंसर? ठीक है, तो ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट हो गई लेफ्ट साइड में, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली इधर, ये 0 पे, ये वाली 1 पे, ये वाली इधर, ये इधर, और ये वाला 1 यहाँ पे कैरी में 1। आप कहोगे ये पहले भी 1 था अब भी 1 है, क्या चेंज हुआ? चेंज हो गया है बिकॉज ये वाला 1 था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 1 ही रहा। ये 0 होता तो इधर कैरी में 0 हो जाता। सो नाउ दिस वन विच वॉज available earlier will go here, so this one will go in the rightmost part. Okay, so when you have left shift then you are doing discarding, but when you have rotate then you don't discard the value, instead you put it onto the opposite side. Okay, so this is what we have done is rotate rotate left with carry. Understood everyone? Any doubts still here? No, sir. Okay. No, sir. So these are all statements, these are all instructions which comes under shift operation. Okay. Now after finishing our shift operation, the third type of instruction was the program control instructions. So what are program control instructions? Now see, देखो हमारे पास लेट से ये एक प्रोग्राम है, होता क्या है, हमारे पास ये रैम है और रैम में ये लेट से एड्रेस है 300 और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। सो हर एक इंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। एक इंस्ट्रक्शन एक्चुअली एक क्लॉक साइकिल में हो जाए ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो एक से ज़्यादा क्लॉक साइकिल ले रही हो रन होने के लिए, क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं। कैसे? वो पहले इंस्ट्रक्शन फैच होगी, फिर वो डिकोड होगी, फिर ऑपरेंड लोड होगा, फिर उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे और फिर राइट बैक करेंगे। राइट बैक इज जो भी रिजल्ट आया है हम उसको वापस लिखेंगे। तो हो सकता है कि 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन में हो सकता है 5 माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हों। 5 के अलावा 4 भी हो सकती हैं कई बार, क्योंकि हो सकता है हमें राइट बैक करना ही ना हो, और 6 भी हो सकती हैं क्योंकि डिकोड के बाद में कुछ और काम करना हो। तो हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन कैन वेरी, बट when you fetch the new instruction, after fetching what happen is, let's say this is my program counter, it was 300 right now, but after this fetch instruction the program counter will be incremented. I am assuming that each instruction is of one word right now, one instruction equal to one word, मैंने ये assume कर लिया है, इसीलिए ये 300 से 301 हुई है। अगर 4 वर्ड्स की एक इंस्ट्रक्शन होगी तो हो सकता है 300 से 304 हो जाए। ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग वन इंस्ट्रक्शन इज ऑफ वन वर्ड राइट नाउ। तो केवल फैच होने के बाद ही ये प्रोग्राम, ये हमारा जो पीसी है, प्रोग्राम काउंटर है, उसकी वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हो गई और बाकी सारी चीज़ें ये चलती रहेंगी। अब 301 इंस्ट्रक्शन पे हो सकता है कुछ और इंस्ट्रक्शन हो, तो ये इंस्ट्रक्शन 1 थी, ये इंस्ट्रक्शन 2 थी। जब 301 इंस्ट्रक्शन फैच होगी तो इस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 302 हो जाएगी, और फिर जब वो पूरी हो जाएगी इंस्ट्रक्शन तो 302 की इंस्ट्रक्शन को फैच करके ये 303 हो जाएगी, और फैच करने के बाद में बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि लेट से 303 इंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे कुछ कमांड है कि आपको ब्रांच करना है एक पर्टिकुलर एड्रेस पे, और लेट से ये एड्रेस है हमारा, लेट से ये एड्रेस है मेमोरी ऑफ 400। सो इसको यहाँ पे 400 एड्रेस पे जाना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, जब ये 300 इंस्ट्रक्शन फैच हुई
उसके बाद ये 304 हो गई। ये इंस्ट्रक्शन जब फैच हुई ब्रांच वाली, तब उसको नहीं पता था कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, लेकिन प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो गया बाय 1 और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो गई 304। लेकिन जब ये इंस्ट्रक्शन फैच होने के बाद डिकोड होगी और हमें ऑपरेंड मिलेगा और फिर एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होने में हमें पता चलेगा कि हमें 304 पे नहीं जाना है नेक्स्ट, हमें तो ब्रांच करना है एड्रेस 400 पे जो कि कहीं नीचे है। तो यानी कि 304 की जगह इसको हमें 400 करना पड़ेगा, यहीं पे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा बिकॉज हमें दूसरे एड्रेस पे जाना है, 304 पे नहीं जाना है। तो सच इंस्ट्रक्शंस विच आर यूज्ड टू चेंज द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, हमने क्या किया, यहाँ पे सीक्वेंशियली चल रही थी प्रोग्रामिंग, हमारी इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रही थी, बट बीच में कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस आई जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को चेंज कर रही हैं। फ्लो मतलब वो सीक्वेंशियली चल रहा था पहले, बट अब वो कहीं और ब्रांच कर रहा है, यानी कि हमारा प्रोग्राम हो सकता है नॉन सीक्वेंशियल हो, बीच में उसको जंप करना पड़े फिर वापस रिटर्न होना पड़े, ऐसा हो सकता है ना। जब आप प्रोग्राम में फंक्शन कॉलिंग करते हो तो क्या होता है, वो जंप कर जाता है दूसरे एड्रेस पे, फिर वो वापस आता है, फिर हो सकता है दोबारा कहीं पे जंप करे। ऐसा भी हो सकता है इफ एल्स कंडीशंस हो, तो इफ कंडीशन ट्रू देन यू आर डूइंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, बट इफ इट इज नॉट ट्रू देन यू आर स्किपिंग दोज इंस्ट्रक्शंस and going to the next instruction. So you are changing the flow of the program. So those instruction which can change the flow of the program comes under program control instruction because they are controlling the flow of the program. So that's why program control instructions. So what we have learned is flow of program is generally नॉन सीक्वेंशियल। ओके, फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज जनरली नॉन सीक्वेंशियल, क्योंकि आपको कई बार जंप करना ही पड़ेगा, कंडीशंस को चेक करके आपको डिसीजन लेने ही पड़ेंगे, तो जनरली नॉन सीक्वेंशियल होता है, बहुत कम होगा कि सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग हो। उसके बाद प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कौन सी हुई, सो ऑल इंस्ट्रक्शंस विच हेल्प्स to change the flow of program to non-sequential, because हम सीक्वेंस में चल रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रही है, हमें कुछ नहीं करना उसमें। बट अगर हमें अपने प्रोग्राम में इधर उधर कहीं जंप करना पड़ेगा तो वो नॉन सीक्वेंशियल बन जाएगी। और जो इंस्ट्रक्शन हमें इस नॉन सीक्वेंशियल प्रोग्राम को बनाने में हेल्प करती हैं आर कम्स अंडर प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। सो दोज आर प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से होता है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कम्स अंडर प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। सो first instruction is, let's say, branch or jump. So branch is like you want to go to some address, or jump is also like you want to jump to some particular location into your program. ठीक है, तो जनरली कंप्यूटर में दो अलग अलग कमांड या इंस्ट्रक्शन होने की जगह ब्रांच एक ही हो सकती है, या कुछ कंप्यूटर्स में ये दोनों इंस्ट्रक्शंस भी अवेलेबल हो सकती हैं। अब दो अगर अलग अलग इंस्ट्रक्शन अवेलेबल हैं तो उनके अंदर डिफरेंस क्या है, ब्रांच भी है और जंप भी है। अगर एक ही है तो अब तो दोनों को एक जैसा ही मानेंगे हम कि ब्रांच भी वही काम कर रही है जो जंप करेगी। लेकिन अगर दोनों अवेलेबल हैं तो दोनों में एड्रेसिंग मोड का डिफरेंस हो सकता है कि ब्रांच के अंदर जो एड्रेस लिखा होगा वो लेट्स से डायरेक्ट एड्रेस है, और जंप के अंदर जो एड्रेस लिखा होगा वो हो सकता है इनडायरेक्ट एड्रेस है। सो डायरेक्ट एड्रेस मतलब उस एड्रेस पे जाइए और डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। इनडायरेक्ट का मतलब उस एड्रेस पे जाइए, उस एड्रेस पे जो वैल्यू मिलेगी वो एक्चुअली में ऑपरेंड नहीं है, वो क्या है, एक और एड्रेस है जिस एड्रेस पे जाके आपको वैल्यू मिलेगी। सो इफेक्टिव एड्रेस इज गिवन, देन
in the instruction only, then it is direct address. But if you are able to find the effective address by going to that address which is mentioned inside the instruction, then it is called indirect addressing. So addressing mode का difference हो सकता है branch और jump में. So what we are doing is go to some other location without any condition or on some condition. ऐसा हो सकता है कि कुछ कंडीशन पे जंप करना हो, या ऐसा हो सकता है कि कुछ विदाउट कंडीशन भी हमें जंप करना हो, क्योंकि प्रोग्राम में दोनों चीजें हो सकती हैं कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन लेट्स से यू आर कॉलिंग अ फंक्शन कॉल्ड सम ऑफ a कॉमा b, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो आपको सम लेट्स से करना है b कॉमा c. तो ये वाला क्या है विदाउट कंडीशन और ये वाला क्या है विद कंडीशन, तो दोनों तरह से काम हो सकता है. इफ both means branch and jump, both the instructions both are in same computer, if both are available in same computer, then they are differentiated with the help of addressing. So what is the difference? Let's say branch is doing direct addressing and jump is doing let's say indirect addressing. ठीक है. So this is branch and jump. The next type of instruction is skip. Skip किस तरह की इंस्ट्रक्शन है? Let's say you want to skip the next instruction. For example, let's say आपके पास में कुछ इस तरह से कोड है. ये हमारा 200 एड्रेस है, 201, 202, 203, और आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है skip. ठीक है. तो लेट से अभी हमारे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 200 थी. जब ये वाली इंस्ट्रक्शन फैच होगी तो इसकी वैल्यू 201 हो जाएगी, बिकॉज आफ्टर फैचिंग द प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड एंड आई एम एज्यूमिंग दैट ईच इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 1 वर्ड. ठीक है. अब जब हम इस 201 वाली इंस्ट्रक्शन पे आएंगे और इसको फैच करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 202. बट स्किप इंस्ट्रक्शन अभी सिर्फ फैच हुई है. जब ये एग्जीक्यूट होगी तो हमें पता चलेगा कि वी हैव टू स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. हमें ये वाली इंस्ट्रक्शन को स्किप करना है. तो स्किप इंस्ट्रक्शन के अंदर हम कोई एड्रेस नहीं लिख रहे हैं. हम ये नहीं लिख रहे हैं कि जंप टू 203. अगर हम जंप टू 203 करेंगे तो ये चेंज करेगा 203. लेकिन अगर हम स्किप करेंगे तो स्किप के एग्जीक्यूशन के बाद ये ऑटोमेटिकली इस एक इंस्ट्रक्शन को स्किप करेगा. यहाँ पे जंप में तो हम 203 छोड़ो, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि जंप 400, बट वो 400 कर देगा. अब हम इसको 400 नहीं करना चाह रहे, हम डायरेक्ट एड्रेसिंग नहीं दे रहे हैं. वाई वी आर नॉट पुटिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग? बिकॉज अगर प्रोग्राम रीलोकेट होता है तो प्रोग्राम रीलोकेशन के बाद क्या होगा, 400 एड्रेस तो इनवैलिड हो जाएगा. बट स्किप के अंदर हमने कोई एड्रेस नहीं दिया, तो हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप करना है, तो ये डायरेक्टली इसको 203 कर देगा. दैट मीन्स वी वांट टू स्किप दिस इंस्ट्रक्शन, वी डोंट वांट टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन. सो idea is if we provide direct address then relocation will be difficult, but if we provide skip instruction then we don't have to provide any address. जब हम कोई एड्रेस ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई रिलोकेशन में प्रॉब्लम ही नहीं होगी और वो ऑटोमेटिकली हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देगा. तो दिस इज हाउ स्किप विल वर्क एंड इट इज ऑल्सो चेंजिंग द फ्लो कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम. सो इट विल स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, केवल एक इंस्ट्रक्शन को स्किप करेगा. अब लेट से आप सोच रहे होंगे कि वाई वी वॉन्ट टू स्किप द इंस्ट्रक्शन, हम स्किप क्यों करना चाहेंगे? बिकॉज वी वॉन्ट टू स्किप ऑन सम कंडीशन. लेट से हम कुछ कंडीशन पे एक
इंस्ट्रक्शन को स्किप करना चाहते हैं. सो इट इज जनरली यूज्ड along with condition. So if condition is true, then we are skipping. If we are not, if the condition is not true, then we are not skipping. Simple. So for example, जैसे C के अंदर होता है, if this condition is true, then we have to do this, और नहीं तो ये वाली condition तो चलेगी चलेगी. That means let's say इसका एक example लिखते हैं. If a is greater than 2, then a is equal to a plus 1, that is a plus plus, और उसके बाद हम a प्लस बी तो कर ही रहे हैं. तो ये तो हमें नेसेसरी करना ही करना है. लेकिन अगर ये a ग्रेटर देन 2 होगा तो हमें प्लस 1 भी करना है. अगर ग्रेटर नहीं होगा तो हम इस वाली इंस्ट्रक्शन को स्किप करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम स्किप इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कॉल एंड रिटर्न. सो अब कॉल और रिटर्न के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड जनरली इन फंक्शंस. व्हेन यू वांट टू कॉल अ फंक्शन एंड आफ्टर फिनिशिंग दैट फंक्शन यू हैव टू रिटर्न फ्रॉम दैट फंक्शन टू द कॉलिंग फंक्शन. हमने ये कॉल किया, लेट्स से हमने एक फंक्शन लिखा इंट मेन, और मेन के अंदर हमने यहाँ पे लिखा फैक्ट ऑफ 4. सो लेट्स से ये हम x के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंट फैक्ट इंट n, और इसके अंदर हमने लिखा इफ n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 0 देन रिटर्न 1, और नहीं तो हम क्या लिख रहे हैं, रिटर्न n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1. तो यानी कि ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन इस तरह से चल रहा है. यहाँ पे मेन है, मेन ने कॉल किया फैक्ट को, फैक्ट ऑफ 4 को, फैक्ट ऑफ 4 ने कॉल किया फैक्ट ऑफ 3 को, फैक्ट ऑफ 3 ने कॉल किया फैक्ट ऑफ 4 को. इस तरह से कुछ देखो, मेन ने कॉल किया फैक्ट ऑफ 4 को, और फिर इसके अंदर जाके फैक्ट ऑफ 4 ने कॉल किया फैक्ट ऑफ 3 को, फिर यहाँ पे नीचे जाके इसने कॉल किया फैक्ट ऑफ 2 को, फिर नीचे जाके इसने कॉल किया फैक्ट ऑफ 1 को. अब फैक्ट ऑफ 1 जब कॉल करेंगे तो n की वैल्यू 1 है, और ये क्या करेगा, रिटर्न 1. सो ये पूरा होने के बाद इसको वैल्यू करनी है रिटर्न 1. फिर ये कुछ इवेल्युएट करेगा और ये वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ पे 2. फिर ये कुछ इवेल्युएट करेगा और यहाँ पे रिटर्न करेगा 6. फिर ये वैल्यू कैलकुलेट करेगा और यहाँ पे रिटर्न करेगा 24. तो इसको याद रखना है कि हमें क्या कॉल करना है और उसके बाद कहाँ पे वैल्यू को रिटर्न करना है. फॉर दैट पर्पज वी आर चेंजिंग द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एंड वी यूज कॉल एंड रिटर्न. ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस आर असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस. ये ऐसा नहीं है कि हम सी प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं कर रहे हैं इस तरह की इंस्ट्रक्शंस की कॉल एंड रिटर्न. ये जब आप सी प्रोग्राम लिखते हो तो कंपाइलेशन के बाद प्रोग्राम जनरेट जो होता है वो असेंबली कोड होता है. तो ये सारी इंस्ट्रक्शन असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस हैं. तो ये कॉल एंड रिटर्न क्यों यूज़ हो रहा है, यूज टू कॉल अ सब रूटीन. और सब रूटीन क्या होता है हमारे पास, सब रूटीन इज नथिंग बट फंक्शन. हम रूटीन को फंक्शन, मेथड, प्रोसीजर किसी भी नाम से बुला सकते हैं. देन रिटर्न टू गो बैक टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और नॉट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, टू द सेम इंस्ट्रक्शन, बिकॉज यहाँ पे x के अंदर वो वैल्यू असाइन भी होनी है. तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे अगर जाएंगे तो इसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे और ये वैल्यू असाइन होगी ही नहीं जो इससे रिटर्न हुई है. तो इसीलिए रिटर्न टू गो बैक टू सेम इंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉलिंग फंक्शन. तो हमें उसी इंस्ट्रक्शन पे वापस जाना है, ना कि किसी और इंस्ट्रक्शन पे. तो उसके लिए हम कॉल एंड रिटर्न यूज करते हैं. एंड द लास्ट इंस्ट्रक्शन इज कंपेयर एंड टेस्ट. अब ये वाली इंस्ट्रक्शन बहुत कम यूज़ होती हैं, रेयरली यूज इंस्ट्रक्शंस हैं, बट कोर्स में है तो पढ़ लेते हैं. सो कंपैरिजन ऑफ कंडीशन. कंपेयर इज नथिंग बट कंपैरिजन ऑफ कंडीशन. सो on the basis of condition, let's say we have to take some decision. Let's say
example, if लेट्स से a इज ग्रेटर देन b, तो एक्चुअली में ये कंपैरेटर क्या करता है, हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू इस तरह के कंपैरेटर नहीं होते हैं. वी कंपेयर बाय यूजिंग फ्लैग्स. मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि फ्लैग्स के हेल्प से कंपैरिजन कैसे होता है. यहाँ पे एक आइडिया सुनो. लेट्स से मुझे ये कंपैरिजन करना है, तो मैं क्या करूँगा, a माइनस बी को कैलकुलेट करूँगा. सब्ट्रैक्शन. ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बॉइल्स डाउन टू सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन. a माइनस बी करने के बाद अगर हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो यानी कि a बड़ा रहा होगा, तभी तो ग्रेटर देन ज़ीरो आया रिजल्ट. अगर हमारा रिजल्ट लेस देन ज़ीरो है तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, क्योंकि इसका मतलब b बड़ा रहा होगा, तो कंडीशन फॉल्स हो गई. तो कंपैरिजन इज डन बाय यूजिंग सब्ट्रैक्शन ओनली. it's not a new thing for a computer. So comparison of conditions are done by using these things. Okay, so these are not used directly, ये डायरेक्टली यूज नहीं होती है, बट बाय यूजिंग फ्लैग्स होती हैं, और इन फ्लैग्स के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. एंड व्हाट इज टेस्ट? टेस्ट इज यूजफुल टू टेस्ट सर्टेन कंडीशन. अब ये कंडीशन कैसे हो सकती है? लेट्स से ये हमारे पास एक सीरीज ऑफ बिट्स है, ये हमारे पास सीरीज ऑफ बिट्स है. मैंने कहा कि ये फोर्थ बिट अगर 1 होगी तो मुझे आगे बढ़ना है, और नहीं तो मुझे कहीं और जंप करना है. फॉर एग्जाम्पल, सो व्हाट आई एम सेइंग इज एग्जाम्पल, इफ फोर्थ बिट कोई भी हो सकती है, ये nth बिट is an fourth bit of an operand, जो हमारा ये ऑपरेंड है. ठीक है. इस ऑपरेंड की अगर फोर्थ बिट इज 1, ये हमने टेस्ट की, देन डू समथिंग. अब वो समथिंग क्या है? कुछ भी हो सकता है. आप हो सकता है एडिशन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, जंप कर रहे हो, वो कोई भी कंडीशन. अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो यू वांट टू डू समथिंग, इफ नॉट देन यू डोंट हैव टू डू समथिंग. सो फॉर टेस्टिंग such kind of things we can use test, but both these compare and test are very less used, or they are not used directly, they are used with some other instructions. Okay, so this is all about the instructions under the data transfer instruction, or we have also studied the data manipulation instructions, and lastly the program control instructions.